صاحب جو آفر آج آپ مانگ رہے ہیں حکومت سے اسپتال شفٹ کرنے کی، یہ تو 2-3 مہینے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ فیملی ممبرس کو بھیجا جائے گا ساتھ. مسٹر گور صاحب سے بھی ہم نے پوچھا, کیا بھی ہے مسٹر گور صاحب کو آفر تھی کہ آپ گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جائیں گے خان صاحب کے ساتھ اور ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. کیوں یہ آفر اویل نہیں کی گئی؟ ایک فیملی ممبر کی بھی آفر تھی, آج 4 مہینے پہلے آپ کو یہ آفر تھی, آپ کچھ اور بات کرتے ہیں, فیملی کچھ اور بات کرتی ہے, کمیونیکیشن گیپ تھوڑا سا. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. گور صاحب آگے سر, گور صاحب سے پوچھیں سر, کیا ایسی آفر آئی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ کے؟ اچھا, لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے, کسی نے غلط مس انفارمیشن دی ہے. گور صاحب بات کریں گے اس پر, پھر جو ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 3 ججز بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا, بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے, وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میں بھی بات کرنی تھی, تو وہ میٹر تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں, جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے, بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے. 2 ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے. ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے. جب جب خبر آتی ہیں تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے, اور یہ ہمارا کنسرن اور پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور پوری دنیا کا کنسرن ہے. وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین, قانون اور رول کے مطابق. ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے, 3 ججز کا یہ آرڈر موجود ہے. گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں. ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں. جب جب ہم نے کہا ہے, ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو, وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہوں, خاندان کے سامنے ہوں, اور اس ہاسپٹل میں ہوں جو فیملی نے چوز کیا ہے. یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے, یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے, جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے, یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے, اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے, اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو. اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے. کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے. ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے, ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں, 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں. برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے, یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے, کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے, کل ان کے وکیلوں کو بھی ایکسس دے. ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی, ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی. جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا, جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا, تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی, اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے. یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے. باقی آپ لوگوں نے باتیں کی, اگر کوئی کوشچن ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں لوں گا. آپ لوگوں کے میں نے کوشچن نہیں سنے, جو آپ کا کوشچن ہوگا آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. اور سی ایم صاحب, یہی آفر 4 مہینے پہلے علیمہ خان صاحبہ اور ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ بھائی ہمارے ایک فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے قاسم خان صاحب کو, اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات ہے, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں علیمہ خان صاحبہ چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں اور ہمارے ڈاکٹرز کو ساتھ بھیجا جائے گا. تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں. آپ اتنا نقصان ہو چکا ہے, تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا, 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 4 مہینے پہلے کھڑے. دیکھو, جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا, یہ ان کا احساس ہونا چاہیے. پرانی کی بات نہ کرو. علیمہ بیا جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا, علیمہ نے صحیح کہا ہے, درست کہا ہے. علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملیں. کہاں رول میں لکھا ہوا کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے ہو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے, جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو
देखो उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस तो मना हुआ है न सिर्फ 4 महीने पहले, एक्सेस तो मना हुआ है गुज़श्ता अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो, खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को जाने दो, सारी बहनें चली जाएं, सारी बहनें चली जाए, वकला सारे चले जाएं। पहले नहीं मिलते थे, केस में के दिन पे नहीं मिलते थे, तो अब अचानक क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया? ये तो हमारा हक है, लेकिन अब हम मुतालिबा ये करते हैं। पहले क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट हुआ कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई रहा है और खान साहब इस मेडिकेशन पर है, तसल्ली तब होगी जब एक्सेस अवेलेबल होगा। अच्छा सर, ये बताएगा कि वन बाय वन आपके दौर में हमने देखा कि आप लोग रिहाई का मुतालबा करते थे, और जब से आप सीएम बने हैं तो अब रसाई का मुतालबा किया जा रहा है, तो नाकामी का इतराफ क्यों नहीं किया जाता? दूसरा, पख्तूनख्वा के हवाले से सवाल है कि वहाँ बदनगी बहुत है, अगर आप बनो गए थे, आप बेहतरीन स्ट्रीट मूवमेंट किया, अगर वहाँ पर सेहत पी रहे हैं, सेहत पे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत की, सेहत के हवाले सेहत से पे सवाल- कोहिस्तानी साहब, सेहत के हवाले से सवाल ये लीजिएगा कि हमने देखा कि सवाल करने दें। कौन कौन मार, किसकी पॉलिसी के तहत मर रहे सीएम हैं? आप हैं, पॉलिसी किसकी थी? जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। है ना, पॉलिसी किसकी थी? बोले ना, पॉलिसी किसकी थी? इनको दोबारा बात करना। हाँ 2021 में इमरान खान ने कर रखा है। यार, अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? इमरान खान साहब की हुकूमत में आया नहीं था, जो लाए हैं उनका नाम लें। कौन लाया है? कौन लाया है? आप इसका जवाब देंगे कि कौन लाया, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से वहां पर जो है मेरे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। गलत पॉलिसी, गलत पॉलिसी। हाँ, हमने देखा कि जिस सोर्स के थ्रू ये खबर आई थी इमरान खान के ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसी सोर्स ने ये बताया कि आप जो है वो इमरान खान ने जेल के अंदर से ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे सेहत के ऊपर कोई सियासत ना की जाए। अगर लिख के देकर, अगर वो कहते हैं कि मुलाकात वो करवाते हैं, तो फिर आप लिख के भी दें। तो फिर आप मुझे ये बताएं सर कि पार्टी के अंदर लिख के देने के हवाले से कौन मुखालफत कर रहा है, और अगर आप लिख के दे के मुलाकात करते हैं तो उसमें फिर हर्ज क्या है? देखिए, अगर हम लिख के दें या ये मुंह से बोले, वो पूछ कर ही बताते हैं, मतलब इख्तियार है नहीं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, और ये अभी सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, ये जेल इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पर गई हैं। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, तो जो अदालतें या जो इदारे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप ज़िम्मेदार होंगे, और उनके, हालांकि पूरी दुनिया को पता था कि वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स के जाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जाने दिया। उनका बाहर इलाज हुआ या ना हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जाने दिया। अभी इमरान खान साहब का जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही है, इमरान खान साहब ने इतने अरसे में कभी भी जो है अपने सेहत का इशू नहीं बनाया। मसला ये है, और इनको सोचना चाहिए जो लोग अभी इक़्तिदार में हैं, कि इमरान खान साहब ने 1000 से ज़्यादा दिनों में कभी भी सेहत का इशू अपने लिए नहीं बनाया, और अपने सेहत पर सियासत नहीं की, ना सेहत के इशू पर कभी रिलीफ मांगा। ये 2 दिनों में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ये आज, ये कल इनकी बारी आने वाली है, और ये बहुत दूर नहीं है, अगले बजट से पहले इनकी बारी आने वाली है, तो फिर ये क्या जो है कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ना इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को छोड़ा है, ना चादर चार दिवाली की पामाली को छोड़ा है, ना जो है हमारे माइनर्स जो 18 साल से कम है उनको भी इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और उन पर FIR दहशतगर्दों की हुई है। तो ये फिर जो है किस मुंह से बोलेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है? क्योंकि ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो बहरहाल अभी इमरान खान साहब की सेहत का जो है हम उस पर बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो हैं अल-ऐलान ये बोल चुके हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें उनकी फैमिली की, ये हम गारंटी देते हैं कि बाहर कोई सियासी बात नहीं होगी। तो इसके बाद जो है लिख कर देना या किसी और का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर पिछले 3 सालों में काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत से भी मुतालबा हुआ है, और अभी तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद जाहिर की है कि मतलब मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन मुलाकात ना कराने की वजह आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट में बस है, और क्या एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात का मुतालबा करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ साथ आपने मुलाकात के लिए
कुछ शराइत रखी थी बजट का भी और मिनरल का भी, और साथ साथ वो जो ड्रोन या दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, और फिर वफाक जो पैसे आप लोगों से मांग रहा है कि मतलब वफाक के जो मतलब पैसे हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने सामने रखी थी, लेकिन वो सब कुछ फिर भी हुआ, पैसे तो मेरे ख्याल में नहीं दिए आपने वफाक को। तो ये जो मतलब वहाँ पर दहशतगर्दी है या मतलब बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये मतलब इमरान खान के साथ मुलाकात ना कराने की वजह मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है तकरीबन तमाम जितनी भी हमारे अदालतें हैं वो यरगमाल बन चुकी हैं, क्योंकि ये जो है इन्होंने गैर कानूनी इलिजिटिमेट गवर्नमेंट के ज़रिए ये तरामीम लाए। ये तरामीम भी जो हैं गैर आइनी हैं, क्योंकि अवामी मैंडेट से ये हुकूमत नहीं आई, तो वो उन पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इंसाफ नहीं हो रहा। हम बेसिक मुतालबा यही कर रहे हैं कि इंसाफ हो, और अदालतों का काम इंसाफ करना है। वो किसी के ज़ाती नौकर बनेंगे, ज़ाती नौकर बनेंगे या जो है चिट के ज़रिए कोई फ़ैसले करेंगे, तो फिर अदालतें बंद होनी चाहिए। फिर आवाम को इंसाफ खुद करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम है, तो वो इंसाफ अपने हाथ में लेगी। मसला ये है कि ये इमरान खान साहब के नाम से डरते हैं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर से डरते हैं। मसला ये है कि इमरान खान साहब इतना मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर है कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिले। तो ये खौफ अपना ख़त्म करें, क्योंकि ये अवाम का काम है कि वो किसको अपना लीडर चूज़ करती है। अगर इमरान खान साहब डिलीवर कर रहे हैं, इमरान खान साहब कौम को फ़ायदा दे रहे हैं, इमरान खान साहब मुल्क की मईशत को उठा रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बहाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिला रहे हैं, तो ये तो इनको खुश होना चाहिए। लेकिन ये खुश सिर्फ एक चीज़ पर होते हैं कि इनकी जितनी जो है मतलब बूट पॉलिश, जितना जो ज़्यादा बूट पॉलिश करता है वो उनको ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। जो मुल्क को अच्छा करना चाह रहा है वो अभी जेल में है। तो सारा खौफ जो है इमरान खान साहब के साथ है। एक मिनट सर, आप करें सवाल। एक मिनट सब्र कर ले सर। पिछले दिनों में आपके साथ एक मुलाकात हुई तो काफी ये तशवीशनाक खबर आ गई। तो हमने कहा था कि ये तशवीशनाक खबर भी आ गई तो 27 सितंबर की कॉल जो है उसका कोई टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं। आपने कहा था कि अगर ये रिपोर्ट ऐसी आ गई तो हम 27 सितंबर वाली कॉल आपको तब्दील भी कर सकते हैं। तो अब ये रिपोर्ट आ गई तो इसके ऊपर क्या कोई तब्दीली का सोचा जा सकता है या वही 27 सितंबर की कॉल फाइनल आ? मैंने स्टार्ट में बात कही और जुनैद अकबर साहब ने भी कही कि इस रिपोर्ट पर हम इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी बैठेंगे, इमरान खान साहब के ज़ाती मालजीन के साथ भी बैठेंगे और वकला के साथ भी बैठेंगे, और उसके बाद जो है आपके सामने अपना लायमल रखेंगे इंशाल्लाह। जी सर एक मिनट सब्र कर लें सर। अच्छा बताओ, क्वेश्चन मानना अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, मुझे पता लग गया कि उनको कितनी टेंशन हो रही है। देखो, मैं एक अर्ज़ करूँ आप सबको बड़ा ऑन सीरियस नोट। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोई एज अ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, न कोई टिक टाक के लिए कर रहे। देयर इज़ अ सीरियस इशू खान साहब के सेहत के बारे में। इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। इस वक्त सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब के सेहत के बारे में कोई ख़बर आ जाए। इसलिए हमने हमेशा से ऐसे वक्त में ये कहा है कि एक तो खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका मुकम्मल इलाज हो, उसका चेकअप हो, उसको मेडिकल चेकअप हो। ये मुतालबा हमने फरवरी में भी दोहराया था कि उसका चेकअप कराओ, उसकी क्या क्या रीज़न्स है, उसकी रेगुलरली चेकअप कराओ इंडिपेंडेंट डॉक्टर से। अब कल ट्यूसडे हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल मुलाकातों को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलिजीन को फिल फॉर एक्सेस दो और उनको शिफ्ट कर लो, ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो। और ये कंसर्न नहीं, ये एक बहुत सीरियस वायलेशन होगी। खान साहब के सेहत के बारे में कोई भी लैप्स पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान हो। हम हमेशा चाहते हैं और हमेशा का है सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन लीडर की सेहत द प्राइम कंसर्न ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी। इसलिए मेहरबानी करके इस पर हमारा फोकस है। हम मुतालबा दोहराते हैं कि कल फिल फॉर एक्सेस दे, उनके डॉक्टरों को भी दे। तसल्ली तब होगी जब खान साहब का इलाज उन डॉक्टरों से होगा जिस पे उनकी तसल्ली होगी, खान साहब की, उनकी फैमिली की तसल्ली होगी और पार्टी की तसल्ली होगी।
जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके ऊपर तो कभी राय पिम्स की आती है, कभी डॉक्टर की आती है, ठीक है। आज रिपोर्ट में आँख के हवाले से भी कहा गया ठीक है, चलें तशवीश है आपको। आपकी पहले भी गारंटी से मुलाकातें होती रही, बड़े मुतबर हल्कों में आपकी एक मुकाम है, सेंटर है। अभी क्यों नहीं आपकी गारंटी मानी जा रही, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आप गारंटी अभी देने को तैयार हैं? देखिए, इसमें गारंटी वारंटी की तो बात है ना, हमने तो कहा है, बहनों ने कहा है हम बात नहीं करेंगे, पर हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये रूल के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे ख़िलाफ़ जो ऑर्डर होता है वो तो सेकंडों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ऑर्डर मार्च 2025 का ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट होना है 3 मेंबर बेंच का। 15 अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। ये 300 से ज़्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करो। आज हम इसलिए बैठे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता तो हमें पहले ना पता चलता, हमें पहले हम अदरवाइज़ ना करते, कंसर्न शो करते जो हम आपके सामने बैठे हैं। जैसा भी हो जी, इस चीज़ को छोड़े, कौन गारंटी दे कौन ना गारंटी दे, वो बहनें खुद गारंटी है, वो इस मुल्क के पेट्रियाटिक है, वो इन्होंने 30 साल इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। सबसे बेहतर क्या वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे जिसको पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, जो पाकिस्तान के अंदर कोई अफरा तफरी हो, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार हो। वो तो बैठी इस वजह से हैं कि जी पाकिस्तान की बेहतरी, और बेहतरी इसी में कि मुलाकातें और खान साहब की सेहत के बारे में अच्छी स्टेटमेंट आ जाए।